Okay, we're talking about warehousing and layout storage, ठीक है? If you cannot hear me, तो please reply. मुनीब आपकी So I can hear you. clear है? चलो, very good. Before you were not here, I'm very much was trying to recover the video. उसमें शायद recording में problem आ रहा था. That's why I was like trying to recover it. देखते हैं if I can get it back. ठीक है? But before you were there in the class, we are talking about layouts, ठीक है? तो इसमें हम लोग अभी तक पहुंचे हैं warehousing के layouts पे. What is the concept of layout to you? So to me, it's like a map of where everything is going to be, like a mental map or a physical map of everything that is like the Okay, dedicated sections for everything. exactly. Very good. So we're talking about warehousing, okay? In warehousing, the objective is to optimize the trade-off between handling cost and costs associated with the warehouse space, okay? Obviously, most of the cases, the warehouse is on rental space. So you need to make sure that the things that has to be stored, they are also getting the proper space, and utilization is also taking the due care of. It's like utilize the cube of is like utilize full volume while meeting low material handling costs. What is material handling cost? You need to make sure people or the equipment that are used for handling that storage space, that is also given due respect. Okay? So there's a trade-off between volume and handling costs when it comes to warehousing. Let's go in detail of it for further. We're gonna go in more detail of it. Again, what comes in the material handling costs? These are the factors that comes in material handling costs. All costs associated with the transition of incoming transport, storages, finding and moving material. That's in the material warehouse. Some things are stored, so you're definitely going to try and find out where the things are stored. If you're going to use a software, so that's going to be cost for you. And if you're using some other mode, obviously there will be cost involved. Outgoing transport, equipment, people, material supervision, insurance, depreciation. These are all material handling costs. In other words, we call it warehouse cost or storage cost. Okay? There's a two name of it. Warehouse cost and storage cost also. Material handling cost, right? But what is its advantage? This basically minimize the damage and spoilage. Because if you're going to use any other space or an open area, maybe there's a rain that can damage all the finished products. Okay, so you definitely need protection. So in terms of protection, warehouse is the ideal location to store the goods, raw material, or any semi-finished product. You see a lot of warehouses, especially when it comes to aviation, like aerospace. You have to have very large spaces for warehousing because spares, raw materials, and all these things need to be put in until there's production required. You have to store them until production is going to start, right? So definitely you need a proper warehousing of all these systems. Any question? Okay, let's talk about warehouse density. It's going to be varying inversely with the number of items stored. Means sometimes you also use the ASRS system, that's automated storage and retrieval system. What is automated storage? The system itself decides कि कहाँ पे इसको storage में location देनी है. उसको पता होता है storage location is empty, so it will decide कि यहाँ पे इसको store करवा देते हैं. और call भी खुद करेगा. Call खुद करे कैसे क्या? Like you have RFID codes, RFID guns होती हैं, उसमें वो system खुद जाके उसको बता के pick करेगा. Automatic picking होगी, automated storage होता है. This is the advanced version of warehousing. That's called ASRS, right? और इसमें से productivity आपकी 500% यूज हो जाती है. And it's also going to dock location is also key design in the element. ठीक है, ये इन्होंने गाड़ियों की दिखाई है एक तस्वीर में. दिस इज फॉर द कार्स. लेकिन इसी तरह के मटेरियल भी आपके स्टोर होते हैं. एनी प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चंस? दिस इज कॉल्ड क्रॉस डॉकिंग. क्रॉस डॉकिंग में क्या होता है कि यू मेक श्योर कि जब आपकी चीज़ आ रही है उसी वक्त दूसरी गाड़ी भी आ चुकी है. यू डोंट हैव टू स्टोर इट. जैसे ही वो कार्टन यहाँ पे डिलीवर हुआ, आपने थर्ड पार्टी को डिलीवर करना था, डिलीवर हुआ और आपने वहीं से उसको इनबाउंड प्रोसेस करवा के दूसरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी सी में दिलवा दिया. तो लाइक यू हैव टू लाइक
वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्टोरेज टाइम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और इसमें स्टोरेज नॉर्मली जीरो स्टोरेज होता है। वी कैन से क्रॉस डॉकिंग में व्हाट वी से materials are moved directly from receiving to shipping and are not placed in storage in the warehouses, ठीक है। लेकिन इसके लिए फिर ये प्रॉपरली हो कि जिस टाइम ये गाड़ी आई हो सामने भी उसी टाइम गाड़ी खड़ी हो, ठीक है। ऐसा ना हो ये चीज़ें, ये बिकॉज दीज आर ऑल लॉजिस्टिक्स पीपल, दे विल नॉट वेट। उसको ऑफलोड करेगा और वो चला जाएगा। ऑफलोड होकर यहाँ पता चला इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। फिर मुझे इसको फॉर एग्जांपल दूसरे वेयर हाउस में भिजवाना है, कि मैंने इसको आगे अपनी रॉ मटेरियल है ये, और इसको मैंने प्रोसेसिंग करवानी है, तो मैंने इसको स्टोर ही नहीं करना। तो मैंने इस तरह इनबाउंड वेयर हाउस बनाया है कि यहाँ पे गाड़ी उतारती है, फिर दूसरी गाड़ी यहीं से लगी, इसमें सारा गया रॉ मटेरियल, और वो सारा प्रोसेसिंग के लिए चला गया, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि आई पर्सनली डन दिस, कि हमने पॉट्स कुछ बनाए थे, बताया था आपको। उसमें इसका मटेरियल हमने मंगवाया था, फ्लावर्स एंड ऑल दैट, वो सारा इधर से उतरा गाड़ियों में, और वो दूसरी गाड़ी खड़ी थी उसमें हम डाल दिया। वो वहाँ से वो लेके चले गए हमारे प्राइमरी लोकेशन पे, जहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग और ऑर्गेनाइजिंग हो रही थी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू, वी डोंट स्टोर इट। दुनिया में इस तरह होता है कि RFID कोड्स होते हैं, ठीक है, शिपमेंट्स होती हैं, एक्यूरेट शिपमेंट्स एंड ऑल दिस, ताकि जिस टाइम पे गाड़ी आ रही है उसी टाइम पे ये भी गाड़ी अवेलेबल हो। एनी प्रॉब्लम इज क्रॉस डॉकिंग, इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली क्रॉस डॉकिंग में किसी ने कुछ पूछना है प्लीज? एनीबडी हु हैज अ प्रॉब्लम इन क्रॉस डॉकिंग? जवेरिया, पूछना है कुछ? नो सर। रैंडम स्टॉकिंग क्या होता है? आप किसी भी जगह कोई भी चीज़ रख दो। टिपिकली रिक्वायर्स ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एंड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, अलाउज मोर एफिशिएंट यूजर स्पेस, ठीक है। बट इसके की टास्क हैं, मेंटेन लिस्ट ऑफ ओपन लोकेशंस, इसमें पता होना चाहिए कौन कौन सी खाली जगह पड़ी है इस वेयर हाउस में जहाँ पे मैं ये रखवा सकता हूँ चीज़ों को, ठीक है। रिकॉर्ड एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस होना चाहिए आइटम्स का, जैसे बताया था, टू मिनिमाइज ट्रैकिंग लेवल, मिनिमाइज ट्रैवल पिक एंड टाइम, ठीक है। छोटी चीज़ें, जो चीज़ें आपकी जिनकी रोज़ाना अपनी मूवमेंट है, उनको आपने नीचे रखना है, जो जिसकी मूवमेंट कम है, ऑर्डर्स कम है, तो उसको ऊपर रखना होता है, कंबाइंड पिकिंग ऑर्डर्स, ठीक है। असाइन क्लासेस ऑफ आइटम्स टू पर्टिकुलर एरियाज, जैसे मैंने बताया, फास्ट मूविंग गुड की अलग क्लास बना दिया आपने, स्लो मूविंग गुड अलग रखी हुई है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली इश्यूज अलग हैं, बॉटल अलग है, शो स्टॉपर्स एक होती है चीज़। शो स्टॉपर्स का मतलब है ये चीज़ हमेशा चाहिए, नहीं होगी तो हमारा पूरा शो स्टॉप हो जाएगा। होल्डअप्स कहते हैं वैसे, वो अलग रखे थे हम लोग, ठीक है। इनके सबके एरियाज बनाए हुए, ये क्लासेस बनती है ताकि आपको पता हो कि कौन सी गुड मेरी कहाँ पे रखनी है मुझे। Customization is basically value-added activities performed at warehouse. It enable low-cost, rapid response strategies like assembly of components, loading software, repairs, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। वेयर हाउस में ये सब काम भी हो रहे होते हैं साथ साथ। फिक्स पोजीशन लेआउट क्या होता है? प्रोडक्ट रिमेन्स इन वन प्लेस, राइट? सर लास्ट यस, स्लाइड करें। यस जवेरिया। सर लास्ट स्लाइड में क्वेश्चन है। ओके, बैक, हाँ बोलो इस पे। सर कस्टमाइजेशन इधर वेयर हाउस में कैसे हो सकती है? कस्टमाइजेशन देखो, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल मुझे वहीं पे इसकी पैकिंग चेंज करनी है और अपनी पैकिंग में डालना है। मैंने किसी से सामान बनवा लिया तो उसने तो मुझे कार्टन्स दिए ना, ये कार्टन्स तो मेरे जब डिलीवरी लेके जाऊंगा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो मेरे अपने कार्टन्स हैं मैंने उसमें फिक्स करना है। तो जब ये गाड़ी से उतरे सारे कार्टन्स, मैंने कहा इसमें से ऑफलोड करो, इस कार्टन में, इस कार्टन में डाल दो, और इसके ऊपर नए लेबल्स लगाओ, नई पैकिंग चढ़ाओ। तो ये सारे काम मेरे वेयर हाउस में एक साथ हो रहा है उसी जगह पे, ठीक है। जैसे इसने लिखा है यहाँ पे, नहीं था ना, कस्टमाइज लेबलिंग एंड पैकिंग, ठीक है। अगर कोई चीज़ मैंने यहाँ पे देख ली टूट के निकल गई, रिपेयर भी वहीं पे मैंने बुला ली इसको, ठीक है यार, ये LEDs में सप्लाई कर रहा हूँ, या कंप्यूटर्स की कोई मेरी सप्लाई चेन है, उनको मैंने कहा ये उसमें से खोल के चेक करते जाओ और पैक करते जाओ, पता चला इसमें 3 खराब निकले,
उसने कहा सर मैं इसको रिपेयर कर दूँ। मैंने कहा बैठ जाओ, आप ही वहीं पे रिपेयरिंग शॉप बनाई हुई है हमने, रिपेयर ऑल्सो गोइंग साइड बाय साइड, ठीक है। असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स, जैसे हम लोग यहाँ पे आज ही मैं आपको एग्जांपल दूँ। एक हम असेंबली में फॉर एग्जांपल शाफ्ट बेरिंग का मैं आपको एग्जांपल दूँ। शाफ्ट बेरिंग्स होते हैं, ये बेसिकली यूज़ होते हैं आपके एक प्रोडक्शन में, सपोज कर लो, ठीक है, नाम नहीं बताता मैं। तो शाफ्ट बेरिंग्स के लिए क्या करते हैं, ये लोग आते हैं वेयर हाउस से, शाफ्ट बेरिंग्स निकाले सारे बॉक्सेस में होते हैं, उसी को फिर असेंबल करते हैं और फिर जाके लेके जाते हैं, ताकि जो प्रोडक्ट बननी है वो एक उनको शेप में लाना होता है। तो वेयर हाउस में ये सारे काम कर लेते हैं, ताकि उसको जब लेके जाएंगे इसको कंपोनेंट ए भी इशू होगा, इसके बाद कंपोनेंट बी भी इशू होता है। ये दोनों निकलेंगे, एक बॉक्स ये निकलेगा, एक बॉक्स ये निकलेगा, दोनों को असेंबल करेंगे, फिर ये इशू करवाते हैं मुझसे, ठीक है। समझ यस आ रहा सर। है जवेरिया? जी सर, समझ आ गई। वेरी गुड, शाबाश। बाकी लोगों को कोई सवाल नहीं है? बाकी सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, सब एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। कि चल, फिक्स पोजीशन लेआउट्स क्या होते हैं? जिसमें पोजीशन प्रोडक्ट रिमेन्स इन वन प्लेस, लाइक ऑपरेशन थिएटर में देखते हो आप, एक आपका ऑपरेशन जो यहाँ पे हो रहा है, ये चीज़ आपकी फिक्स है, ठीक है। वर्कर्स एंड इक्विपमेंट्स कम टू द साइट, लोग आएंगे यहीं पीसी की जगह के पास पास काम करेंगे, इसको कहते हैं फिक्स पोजीशन लेआउट, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया था कि फिक्स पोजीशन लेआउट में हमारे पास मशीन्स हैं, लेथ मशीन है, उसके आसपास सारे लेथ के जितने वर्कर्स हैं वो सारे निकाल रहे हैं, स्क्रू जो भी है, प्रिंट स्क्रूज निकल रहे हैं, प्रिंटिंग की मशीन होती है, मशीन लगी है, इसके आसपास लोग होंगे, तो दैट्स कॉल्ड फिक्स पोजीशन लेआउट। इसके कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स क्या है? लिमिटेड स्पेस एट द साइट, डिफरेंट मटेरियल रिक्वायर्स डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल नीडेड इज डायनामिक, ये इसमें इश्यूज आते हैं फिक्स पोजीशन। किसी का कोई सवाल? सर फैक्ट्रीज वगैरह में तो सारे इक्विपमेंट्स फिक्स्ड पोजीशन लेआउट में होते हैं। देखो उसमें ज़रूरी कोई। नहीं है, मैंने बताया ना आपको, ज़रूरी भी है कुछ एरियाज में, कुछ एरियाज में नहीं है। लाइक हमारे कुछ शॉप्स है जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, तो वहाँ पे अगर जैसे पीएसडी शॉप है, प्रोडक्शन रीबिल्ड ग्रुप है, वेपन रीबिल्ड ग्रुप है, या फॉर एग्जांपल कोई भी फैक्ट्री हो, इंग्लिश बिस्किट की फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे तो ये मशीन्स का एक जगह होना ज़रूरी भी है। कुछ जगहों पे फिर उनके सेक्शंस बना देते हैं, लाइक हॉस्पिटल में भी दिखाएंगे हम आगे, ये ईसीजी मशीन यहाँ लगी हुई है, तो दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड मशीन लगा दी। तो ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह सारी हो, डिफरेंट बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, डिफरेंट असेंबली लाइन भी हो सकती है। हाँ, ये इसके रिलेटेड जो लोग होंगे वो इसके आसपास ही होंगे। पेंट शॉप में कोई मशीन लगी तो पेंट के सारे सेक्शन के लोग इधर ही आसपास घूम रहे होंगे। मटीरियल मटीरियल मेटलर्जी सेक्शन है, इसकी मशीन के आसपास सारे लोग मटीरियल के होंगे, ठीक है। ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी, ये क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा मस्जिद नबी शरीफ में उन्होंने तामीरात की थी, तो पहले वो बनाते थे टाइल्स को कहीं बाहर ले जाके, वहाँ से पिलर्स बना के आते थे, फिर जाके उसको जगह अपनी जगह पे लगाते थे, ठीक है। ऑल्टरनेट जगह उन्होंने बनाई थी, वादी फातिमा के पास एक इन्होंने जगह ली थी कि ये सारी जगह पे फैक्ट्रीज बनाएंगे, और वहाँ पे ऑल्टरनेट प्रोडक्शन होगी, प्रोजेक्ट होगा, और वहाँ से चीज़ें बना बना के मिलाएंगे। तो इसको कहते हैं ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी। एज मच ऑफ द प्रोजेक्ट एज पॉसिबल इज कम्प्लीटेड ऑफ साइट, कहते हैं, इन अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड फैसिलिटी। उसकी फैसिलिटी वहाँ लगा दी टाइल्स की, कि वो टाइल्स सारे पत्थर काट रही थी, वीडियो देख लेना। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबी मक्का तुल मुकरमा, मस्जिद हराम, तो उसमें दिखा देंगे फैक्ट्री में, उसको ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी कहते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है? दिस कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव एफिशिएंसी, बट इज ओनली पॉसिबल व्हेन मल्टीपल सिमिलर यूनिट्स नीड टू बी क्रिएटेड। एक जैसी टाइल्स बनानी है तो उसकी फैक्ट्री पूरी लगा दो आप। क्लियर अबाउट इट? सर हम कह सकते हैं कि ये जेआईटी वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा नहीं है नहीं, इसमें। जेआईटी नहीं है इसमें बेटा। जेआईटी में तो दो यूनिट्स एक साथ करीब होने चाहिए, सप्लायर अपने प्रोडक्शन हाउस से करीब होना चाहिए। इसमें तो सप्लायर था यूरोप का, इटली की टाइल ये सारी है, वहाँ से पत्थर लाए थे सारे ये। इटली में पत्थर नहीं काटा, वहाँ पे काटते तो बहुत महंगा पड़ता, इन्होंने उसकी फैक्ट्री मक्का में लगा दी, बाहर, मक्का तो मुकरमा के थोड़े से बाहर वादी में। इसी तरह मस्जिद नबी के बिल्कुल शरीफ के साथ एक जगह ली कि यहाँ पे हम सारा काम करेंगे। वहाँ पे पत्थर कट रहा था टाइल्स की फॉर्म में, एक जितनी साइज की टाइल्स कट रही हैं,
ठीक है, इसी तरह कालीन बनाए। तो ये सारी ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज होती हैं। ये मुझे एक और याद आ रही है, फैक्ट्री थी, मैं काम के लिए गया था उसके पास, जो ये ब्रिक्स बनाती है साइड पे, आपकी गवर्नमेंट को सप्लाई करे थे ये लोग। एनवी क्रीट कंपनी, देख लेना वेबसाइट पे इसकी, मैं कंपनी में गया था फॉर डिस्कशन। तो इनका भी ये प्लान था। ये गवर्नमेंट की जो साइड में जो सब बात बनती है ना, स्पेशली कराची में, उनकी इन्होंने लिए हुए थे कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये वहाँ पे दूर कहीं फैक्ट्री बनाई हुई थी ऑल्टरनेट लोकेशन पे, वहाँ से बन के आती थी बॉक्सेस में, और ये सारा लगाते थे। प्रोफेशनल कंपनी थी बिल्कुल, बाहर के लोग थे। राइट। प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट, लाइक मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर, ये मैंने बताया। जैसे ऑपरेशन थिएटर की मशीन सारी एक साथ, ऑक्सीजन मशीन एक साथ, flexible and capable of handling a wide variety of products or services. Scheduling can be difficult and setup, material handling and labor costs can be high. जैसे इन्होंने ये एग्जांपल दिए, ठीक है, सर्जरी सेक्शन, रेडियोलॉजी सेक्शन, फार्मेसी सेक्शन, सभी अलग अलग है। दिस कॉल्ड प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट। जहाँ पे ईसीजी होती है वो अलग लिखा है इन्होंने, ठीक है, सर्जरीज अलग है, रेडियोलॉजी का सेक्शन अलग है। जहाँ जहाँ जिसका प्रोसेस होगा उसके हिसाब से प्रोसेस लेआउट बना दिया इस पूरे हॉस्पिटल का। ठीक है। Arrange work centers as to minimize the cost of material handling. Basic cost elements are number of loads moving between centers, distance load, or people move between the centers. ये मैथ्स हम करेंगे बाद में, इसको मैं थोड़ा स्किप करता हूँ। ये मैथ्स है इसमें। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से आप बेसिकली पहले डिज़ाइन कर लेते हो वेयर हाउस को, ठीक है। तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है कि आप उसको एफिशिएंसी से देख सकते हो कि लेआउट की क्या होगी शक्ल, उसके बाद उसकी सेफ्टी इश्यूज, मटीरियल हैंडलिंग कहाँ से होगी। तो दिस विल गिव यू अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, बजाय इसके कि आप पहले चीज़ बना लो फिर सब चीज़ें हटाओ, क्योंकि इट्स अ वेरी हाई वॉल्यूम चीज़ है। रैक्स एक बार फिक्स हो गए तो उसको हटाना मुश्किल होता है। तो आप पहले इसकी डायग्राम बनाते हो कंप्यूटर पे, या कैड डिज़ाइन बनवाते हो, फिर उसको आप कंफर्म करते हो कि इस तरह की चीज़ कर लो। वर्क सेल्स अगेन, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उनको छोटे छोटे वर्क सेल्स बना लेते हैं हम। एक ही चीज़ पे काम हो रहा है, शीशा कट रहा है, तो शीशे के जितने भी लोग हैं उसको ग्लासेस बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्पेक्टिकल्स। शीशा कटने वाला अलग बैठ गए, ठीक है, उसके फिटिंग वाले अलग बैठ गए। तो ये ऑर्गेनाइज देम इनटू स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है। Group technology identifies products that have similar characteristics for particular cells. Volume must justify cells. जितने ज़्यादा लोग होंगे उसके हिसाब से सेल बड़ा होता जाएगा। 3 बंदों का भी सेल बन सकते हैं, काम ज़्यादा है तो 100 बंदे का एक सेल बना दिया। सेल्स कैन बी रिकॉन्फ़िगर्ड एज डिज़ाइन ऑफ वॉल्यूम चेंजेस, ठीक है। ज़्यादा काम बड़ा हो गया, सेल्स में लोग ज़्यादा बैठेंगे। पहले 3 लोग थे हमारी शॉप में जो सब चश्मे के शीशे काटते थे, ग्लासेस इन टू शेप्स, ठीक है। अब वो जो फैक्ट्री हमारी बड़ी होगी तो वहाँ पे 400 लोग भी बैठते थे, ठीक है। तो ये इस तरह के वर्क सेल्स होते हैं। 3 3 लोग बैठ के एक बंदा उसको पहले पेपर काट रहा है शीशे का, तो उसी शीशे के पेपर से फिर वो शीशा काट रहा है, फिर दूसरा बंदा उसको डाई पे उसको साफ कर रहा है शीशे को। तो ये सारा एक अलग अलग सेल्स के लोग होते हैं। काटने वाले सेल अलग हो गए, डिजाइनिंग वाले अलग हो गए। तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई एंड मेक वर्क सेल्स। क्लियर अबाउट इट? वर्क सेल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या होता है वर्क सेल्स सबको, या सिर्फ जवेरिया को क्लियर है? मुनीब, अंडरस्टैंडिंग इट? ओके। एडवांटेज ऑफ वर्क सेल्स अगेन, इसमें से वर्क इन फ्लो, वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंटरी रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल काम तरीके से होता है। फिर यू डोंट हैव लेस फ्लोर स्पेस इज रिक्वायर्ड, रिड्यूस रॉ मटेरियल एंड फिनिश इन्वेंटरीज, रिड्यूस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, हाई सेंस ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इंक्रीज इक्विपमेंट एंड मशीनरी यूटिलाइजेशन, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी एंड इक्विपमेंट। आई एग्री विद ऑल ऑफ देम। मैं अपनी आंखों से सारे देखें,
एंड यू कैन ऑल्सो फील कि सारे एडवांटेज बिल्कुल रियलिस्टिक एडवांटेज है। किसी को कोई चीज़ पूछनी है इसमें से प्लीज़? एनीथिंग? अगेन इसकी हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग होती है, ठीक है, बीइंग सेल्फ कंटेन विद इट्स ओन इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज। अगेन Japanese term use ki Puka Yoke. It's a test at each station in the cell. Improving layout using work cells. देखो मैंने बताया currently layout workers in small close areas. और improve layout में क्या होगा? Improve layout cross-trained workers can assess each other, may be able to add third worker as a additional output if additional output is needed, ठीक है। इस तरह बैठोगे, इस तरह काम कर रहा है एक बंदा, कटिंग कर रहा है शीशों की, चश्मे बना रहा है, ये एक तरह से अपने कोने में बैठा हुआ है, दूसरा इधर बैठा हुआ है वो भी यही काम कर रहा है, ठीक है, या उसकी हेल्प कर रहा है। इस तरह बैठेंगे तो फ़ायदा ये कि दे कैन हेल्प ईच अदर, ठीक है। इसका लेआउट ये है, और यहाँ पे एक बंदा और बिठा सकता हूँ मैं, यहाँ भी एक जगह बन सकती है, तो दिस इज़ अ बेटर लेआउट। एक स्ट्रेट लाइंस में बिठाने का करंट लेआउट अगर इसका स्ट्रेट लाइंस है, मेक इट हार्ड टू बैलेंस टास्क। इस तरह बैठना मुश्किल होता है, तो इनको इस तरह बिठाओ यू शेप में, ठीक है, दिस इज अ बेटर लेआउट। इसकी मैथ्स हम करेंगे बाद में, ठीक है। दिस इज द मैथ्स ऑफ इट। वर्क बैलेंस चार्ट यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग ऑपरेशन टाइम्स इन वर्क सेल्स, can help identify bottleneck. Flexible cross-trained employees can help address labor bottlenecks. मशीन bottleneck का मतलब क्या होता है? bottleneck का मतलब होता है जहाँ पे चीज़ें फंसती हैं जाके, ठीक, बॉटल होता है ना, दिस इज द bottleneck। तो बॉटल का जो इधर जगह है, पानी इधर से निकलना बहुत मुश्किल होता है, जब bottleneck कहते हैं, जहाँ चीज़ें रुकती हैं, ठीक है। तो इट कैन हेल्प आइडेंटिफाई bottleneck operations, पता चलेगा यहाँ पे कि वर्क प्लेस बैलेंस चार्ट की वजह से कि इट हेल्प्स यूज फॉर वैल्यूटिंग ऑपरेशन टाइम्स इन वर्क सेल्स, कि टाइम ज़्यादा लगता है कम लगता है, कौन ज़्यादा एम्प्लॉय टाइम ले रहा है कौन कम ले रहा है, ठीक है। और क्रॉस ट्रेन एम्प्लॉयज़ कैन हेल्प एड्रेस लेबर बॉटलनेक्स। क्रॉस ट्रेन का मतलब है कोई बंदा अगर दो तीन काम जानता है, एक काम स्लो हो रहा है तो वो जाके उसको ख़त्म करवा सकता है कि ठीक है अब चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, आई नीड टू फिनिश दिस टास्क। तो इफ़ इट इज़ एग्जैक्टली वर्क बैलेंस, तो उसमें आपकी क्रॉस ट्रेन एम्प्लॉयज़ कैन हेल्प एंड एड्रेस बॉटलनेक्स। देर नहीं होती, बंदे आ जाते हैं हेल्प करने। मशीन बॉटलनेक्स क्या होता है? एक मशीन ख़राब हो गई या मशीन में मसले आ रहे हैं, मशीन पे लोड ज़्यादा है, ठीक है, तो अब दूसरी बॉटलनेक को रास्ता निकाल दो, ठीक है, दिस द प्लेस, यहाँ पे काम ज़्यादा, तो लेट्स मूव इट टू अनदर मशीन। व्हाट इज अ फोकस्ड वर्क सेंटर एंड फोकस फैक्ट्री? फोकस वर्क सेंटर क्या होता है? आइडेंटिफाई अ लार्ज फैमिली ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट दैट हैव लार्ज एंड स्टेबल डिमांड, ठीक है, मूव प्रोडक्शन फ्रॉम अ जनरल पर्पस प्रोसेस ओरिएंटेड फैसिलिटी टू लार्ज वर्क सेल। और फोकस फैक्ट्री क्या होता है? फोकस फैक्ट्री सेल इज अ सेपरेट फैसिलिटी, मे बी फोकस्ड बाय वन प्रोडक्ट लाइन, लेआउट, क्वालिटी, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, अदर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फोकस वर्क सेंटर में यू हैव सिमिलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, लार्ज फैमिली सिमिलर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल बिस्किट्स हैं तो एक ही तरह के बिस्किट्स हैं ज़्यादातर, ठीक है, दैट हैव लार्ज एंड स्टेबल डिमांड। ये जैसे इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चर है तो इसकी बड़ी डिमांड्स होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ बिस्किट्स बन रहे हैं रोजाना। मूव्स प्रोडक्शन फ्रॉम जनरल पर्पस प्रोसेस वांटेड फैसिलिटी टू लार्ज वर्क सेल, ठीक है। अब इससे फोकस फैक्ट्री इज अगेन फोकस फैक्ट्री अ फोकस वर्क सेल इन अ सेपरेट फैसिलिटी। अब एक फैक्ट्री की फॉर्म में आ जाएगा तो अगेन ये इसी तरह का काम होता है जो वर्क सेल में हो रहा है पहले या वर्क सेंटर में हो रहा है, लेकिन इट इज़ बेसिकली इन अ सेपरेट फैसिलिटी। एक जैसे मैं बताया 300 वर्क सेल बन गया तो हम उसको कहा कि फैसिलिटी को अलग से कर लो, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये आपकी
रबर एंड पॉलीमर शॉप है, इसको अलग कर लो। ठीक है, शॉप का नाम बना के इसको अलग कर दिया फैसिलिटी को। इसी तरह फैसिलिटीज बनाता जाऊंगा मैं। पेंट शॉप, रबर एंड पॉलीमर शॉप, मेटलर्जी शॉप्स, ये सारी वर्क सेंटर्स से निकल के शॉप्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, और ये सारा पूरा मेरा अंडर वन फैक्ट्री हो रहा है। ठीक है, मे बी फोकस बाय प्रोडक्ट लाइन, लेआउट्स, क्वालिटी, न्यू प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी और any other requirements. Any question till here? किसी ने कुछ पूछना है? यस, जी भैया। सर एक क्वेश्चन, आपने पहले स्लाइड्स में बताया था कि वेयर हाउस से जब हमने कोई भी बॉक्सेस वगैरह लेके जाने हैं, तो उसके लिए ऑटोमेटेड सिस्टम इसका कुछ आपने कहा था। हम्म। सर हमने ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लाइफ और फाइफो, तो क्या वो उसमें इम्प्लीमेंट हो सकता है? क्या पढ़ा था आपने? लाइफ और फाइफो। लाइफो नहीं, लीफो फीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यस सर। अच्छा देखो, अच्छी बात है, पूछ लिया करो, वेरी गुड। लीफो क्या, फीफो क्या होता है? फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये होता है उन गुड्स के लिए जिसकी लाइफ एक्सपायरी होती है। जैसे मेरे पास केमिकल स्टोर है, मेरे पास है यहाँ पे, तो मैं उसको फीफो मेथड पे फॉलो करता हूँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो फैक्ट्री में मेरे पास दो केमिकल्स की बैच आए, एक बैच आया है 2022 में, वो एक्सपायर हो जाएगा। एक 21 में आया, 2023 में एक्सपायर हो जाएगा, 2 साल में बैच एक्सपायर हो जाता है नॉर्मली। और एक बैच आया था 2020 में, वो 22 में एक्सपायर होगा। ठीक है, अब आपने मुझे डिमांड की कि JQ-1 एक केमिकल है, JQ-1। ठीक है, ये केमिकल का नाम मैं लिख दिया। आपने कहा मुझे सर 30 kg JQ-1 चाहिए। ये किस लिए यूज़ होता है? ये जहाज़ों में जो रबर के पार्ट्स होते हैं उनको चिपकाने के लिए, एडहेसिवनेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं कौन सी बॉटल आपको दूंगा? मैं जाऊंगा, मेरे पास दो बैच पड़े हुए हैं। आप तो चालाकी करोगे, यूज़र कहेगा मुझे नया फ्रेश बैच दो, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले मेरा पुराना बैच जिसकी लाइफ एक्सपायरी शॉर्ट है, पहले वो उसको दूँ मैं। तो लड़कों को मैंने बताया हुआ है, मेरे सिस्टम में ये फीफो लगा हुआ है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले कौन सा आया था? 2020 में क्या आया था? तो इशू कौन सा करूँगा मैं? यही करूँगा जो 22 में एक्सपायर होने वाला है। इसको कहते हैं फीफो यस मेथड। इसे सर, क्या कहते हैं? फीफो मेथड। ये यूज़ होता है लाइफ एक्सपायर्ड गुड्स के लिए, जिसकी शॉर्ट लाइफ होती है, लाइफ एक्सपायर्ड गुड्स के लिए। दूसरा होता है लीफो। लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है? जो आखिर में है पहले उसको दो। ठीक है, ये लाइफ एक्सपायर्ड के लिए नहीं होता। लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब ऑपोजिट हो जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है लास्ट इन कौन सा आया था, सबसे पहले ये आया था, लास्ट ये आया था, आखिर में इसको पहले निकालो। ये वेयर हाउस के लेआउट के हिसाब से होता है। अगर एक वेयर हाउस बंद है बिल्कुल, बोरियों में चीज़ें आ रही हैं, तो ऐसी बात है, पहले जो यहाँ बोरियां पड़ी हैं, उनको निकालूंगा ना, अगर एक ही गेट बना हुआ है। ये पुराना मेथड होता था लीफो। ठीक है, वो ये गेट एक ही दरवाज़ा है, यहाँ से निकालने का। सारी बोरियां रख दी हैं मैंने, ये चावल की या आटे की, इस तरह की बोरियां हैं। तो इसको पहले निकालूंगा, फिर इसको निकालूंगा, फिर इसको निकालूंगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है व्हाट प्रोडक्ट यू आर स्टोरिंग। चावल जितना पुराना उतना महंगा चावल होता है। ठीक है, तो उसमें अगेन देखना होता है, यू हैव टू मेक लीफो मेथड। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक्सपायरी फीफो मेथड। राइट। इस क्लास की अटेंडेंस काफ़ी लो है। आई वांटेड टू कंप्लीट दिस चैप्टर हियर, लेकिन आई थिंक इट वुड बी क्वाइट एन अपसेटिंग मैनर अगर हम इसको ख़त्म कर लें, बाकी लोग हमारे इस क्लास में ना मौजूद हों तो आई थिंक वी कैन लीव इट टिल हियर, और इसको हम एंड करेंगे, और बाकी आप इसको देख लेना स्लाइड्स को, और फिर हम उसको रिव्यू कर लेंगे नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह। ठीक है, दिस इज आइडिया, एवरीबडी एग्रीज दिस? प्लीज से समथिंग।